हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस, आज हम सारे प्रेजेंट टेंस करने वाले हैं, दैट टू आई बिलीव 5 to 7 और मैक्सिमम 8 minutes एंड today's video is going to be in Hindi or English because tense हम कर रहे हैं तो definitely for better understanding we need to use one common language जो हम use करते हैं. For me it is Hindi. Definitely I hope that without any sentence structure formulas, yes, ये एक regular class नहीं होने वाली. You can consider this video as a class जहाँ पे हम sentence structure learn करेंगे. हम कैसे सारे present tense को learn करेंगे, whether it is going to be simple present, present continuous, present perfect or present perfect continuous. We are going to do it with the help of one paragraph exercise. Yes, so before diving into this video, I request you all to subscribe to my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, प्लीज गो थ्रू माई चैनल. मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं which are based on English and communication because I'm yours English and corporate communication coach Dr. Sheki Soni. And definitely अगर पसंद आए तो like, share, comment जरूर करिएगा. And without wasting any time, let's get started with today's video. Okay, so now on the screen you can see this whole paragraph and this whole paragraph हमने fill in the blank form में कर रखा है. So you have the options as well. अब इस paragraph के through we will learn all the types of present tense. Yes. So let's get started and I'm going to tell you the meaning and how to identify the tenses, okay, which is extremely important. हम सबसे ज्यादा यहाँ पे गलती करते हैं कि हम tense को कैसे identify करें कि यहाँ पे कौन सा tense आएगा, right? So let's get started with the first paragraph of this whole paragraph, right? So the paragraph says, I'm going to use my laptop, okay? So it says that every morning we are wake up at 6 a.m. and go for a walk. Let's fill in the blanks, go for a walk. Right now, she breakfast in the kitchen. She her yoga session. Okay. So dash के बाद you can see there are certain options which are given, right? And इनकी help से हम इसमें fill in the blanks करेंगे. Now, first of all, how to identify the tenses. So first we'll start with the first line itself. Okay. Every morning we are wake up at 6 a.m. See, this tense talks about simple present tense. Now, how come it is simple present tense? Where it is again very simple. See, जब भी मैंने क्या पूछा था अभी स्टार्टिंग में हमने क्या करा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा. So to identify any sentence कि ये कौन से टेंस में होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है adverb of time. Yes, it is adverb of time. Adverb of time क्या होता है? मतलब adverb मतलब होता है, adverb का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसकी क्वालिटी, राइट? सो एक्शन की क्वालिटी बताता है, राइट? अब ये हो गया adverb of time. तो टाइम मतलब समय, तो वो एक्शन कौन से समय में हुआ है. यस, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेंस होगा. अब यहाँ पे हर एक सेंटेंस में you will see that there will be certain adverb of time and we are supposed to use adverb of time as well whenever we are making sentences. और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो adverb time यूज नहीं करते हैं. So if we will see here, so adverb of time is every morning. So every morning, every day, daily, weekly, generally, usually, ये जितने भी adverb of time हैं ये हम सब किसमें यूज करते हैं? Yes, it is used in simple present tense. This is the reason it is very simple for us to identify that it is simple present tense. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? Wakes up. So every morning Riya wakes up at 6 a.m. and goes for a walk. वो walk के लिए जाती है, right? Now every morning को अपन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. बट सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ विल कम टू सिंपल प्रेजेंट टेंस कि वो कब यूज होता है. इट इज यूज फॉर योर डेली रूटीन्स, daily activities, your habits or any sort of universal facts or general facts or universal truth. So इन सब चीजों के लिए हम simple present tense को यूज करते हैं. एंड यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बता रखा है कि every morning. So it is a daily routine of Riya कि वो सुबह 6 बजे उठती है और वॉक के लिए जाती है. This is the reason we have used Riya wakes up. Now after that, what is the sentence structure of it? So सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है विथ SES. ओके, SES लगता है. SES कब लगता है? तो SES सिंगुलर सब्जेक्ट्स के संग लगता है. SES जैसे गो है तो गो, रिया क्या है? सिंगुलर, तो इसके संग हमने क्या लगाया?
एस और ES। अगर दे होता, दे के साथ वो ही आता, इसमें SES नहीं लगता, तो इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, जैसे एक एग्जांपल में दूं, she reads books every day। तो in the first line it is all clear that it is simple present tense। Now next line, right now she dash breakfast in the kitchen। So अभी इस समय वो क्या कर रही है? वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। So जब भी हम right now, so यहाँ पे तो इस सेंटेंस में अपना adverb of time क्या हुआ? Right now। So right now, these days, at the moment, currently, इस तरीके के adverb of time हमारे present continuous tense में लगते हैं। So it is all clear कि ये कौन सा tense है? Present continuous tense है। तो इसका मतलब क्या होता है? Actions which are happening at the moment। और इसका structure क्या होता है? Subject plus is plus verb of first form with ing plus object। Right now, she is preparing breakfast। All clear? Present continuous tense हो गया, right? Now the second line is she dash her yoga session। अब इसमें हमें ऑप्शंस क्या दे रखा? Already and complete। So already, अब इसमें adverb of time क्या हो गया? Already। So already जो होता है, it is used in present perfect tense। Yes, like already, just now, yet, still। So these are the adverb of time which are used in present perfect tense। Okay, मतलब present perfect tense का मतलब ये होता है कि हमने कोई recent, मतलब अभी रिसेंट में कोई एक्शन किया है। तो जब हम कोई भी एक्शन करते हैं जो कंप्लीट हो चुका है रिसेंट पास्ट में, लेकिन उसका असर अभी भी आपके प्रेजेंट पे होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने मतलब अपना असाइनमेंट अभी भी कंप्लीट करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट पहले करा, या आधा घंटा पहले करा, या 1 घंटा पहले करा, भले ही वो 1 घंटा पहले हो गया है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी मेरे प्रेजेंट पे है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट बट हैज इट इफेक्ट्स ऑन द प्रेजेंट। एंड इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसका आंसर होगा she has already completed her yoga session। Now we will do the second paragraph। Now what it is mentioned, for the last 30 minutes she dash meditation peacefully। Okay, अब यहाँ पे adverb of time क्या है? For the last minute, for the last 30 minutes, कि पिछले 30 मिनट से। तो जब भी since और for आता है, हमें समझ जाना चाहिए कि ये present perfect continuous tense है, right? This is the best way to identify। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम कब यूज करते हैं? वो हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो प्रेजेंट तक चल रहा है एंड उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर तक भी जाएगा, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, ओके। सो ये सेंटेंस नहीं बता रहे कि पिछले 30 मिनट से वो क्या कर रही है? मेडिटेशन कर रही है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस एंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई नो थोड़ा सा लंबा है बट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप इस समझ जाएंगे। तो हैज और हैव में हैज इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर द प्लूरल, राइट? तो यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे? बी। ओके, सो आंसर विल बी फॉर द लास्ट 30 मिनट्स she has been practicing। okay, sentence structure के अकॉर्डिंग जाएंगे तो she has been practicing। next is her brother usually dash football। अब usually आ गया तो usually आ गया। अब कौन सा टेंस है? हमने चारों के चारों टेंसेस कर लिए, तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा? यहाँ पे टेंस लगेगा अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये इसकी हैबिट को बता रहा है कि वो ज्यादातर क्या खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है। बट टुडे ही डैश फॉर हिज एग्जाम, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? वो उसका टेम्पररी एक्शन बता रहा है कि आज वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यूजुअली उसका क्या होता है कि वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो आएगा इज स्टडिंग। नाउ लेट मी टेल यू, इज स्टडिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आल्सो टॉक्स अबाउट योर टेम्पररी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि इन दिनों आप कहाँ रह रहे हो, तो मैं पूछूंगी where are you living currently, मतलब currently और nowadays और these days, right now where are you living। तो मैं जब temporary action की बात करूंगी उस टाइम पे भी हम present continuous tense को यूज कर सकते हैं। The simple exercise, आज हमने सारे टेंसेस
सीखे हैं प्रेजेंट टेंस के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी हम कोई भी टेंस यूज करेंगे हमारी स्पीकिंग में और राइटिंग में, मेक श्योर दैट यू विल राइट एडवर्ब ऑफ टाइम, उससे ही हमारा एक्शन क्लियर होगा। आई होप हेल्प मिला होगा। नाउ सिमिलरली हम पास्ट और फ्यूचर टेंस भी करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे वीडियो का नेक्स्ट वीक। एंड आप मुझे बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड लेट मी टेल यू वन सरप्राइज फॉर यू। यस, द सरप्राइज इज दैट यू विल गेट द होल PDF of this present tense with all the illustrations and sentence structure and this paragraph and other examples as well. Here in the description, go and click on that PDF link and download it and use it anytime to practice. So I'll see you in the next video. Bye.